Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking the chapter number 10, Law of Reflection, class 10 science. Today's topic, Law of Reflection. That means how many types of the law related to reflection. In the case of reflection, already we see हमने कुछ चीजें देख रखा है रिफ्लेक्शन, second one is the refraction and third one is the refraction through prism. In the condition of reflection, we know that law of reflection for spherical mirror. ये है हमारा पूरा आज का टॉपिक, spherical mirror. But in the case of reflection, we know what is this? This is a plane or plane surface. Let me consider any beam arrive through any point of medium. Then after the reflection passing the same medium, these phenomena of light are known as reflection. Here this is known as incident ray and that is known as a reflected ray. This angle will be equal of I and this angle will be equal of R. I, that means the angle of incidence, and R, that means the angle of reflection. According to the law of reflection, only the law of reflection, angle I will be equal of angle R. That means angle of incidence will be equal of angle of reflection. But law of reflection for spherical mirror. Now we are taking another point, law of reflection related to spherical mirror. What is the meaning of spherical mirror? In the case of spherical mirror, we define first one. ठीक है, सबसे पहले हमने डिफाइन करा था सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर? अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड a center of reflecting surface are known as pole. Second point, a imaginary line which passing through center of curvature and pole are known as principal axis line. Third point, fourth point, a midpoint of center of curvature and pole are known as principal focal. And fifth point, a distance between the focus and pole are known as focal length. It is represented by small f. That is a simple explanation related to some words like a center of curvature, pole, principal focus, focal length and principal axis line. Now student, we taking the another portion, law of reflection for spherical mirror. ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, बेसिकली 4 नियम होते हैं. ठीक है, लेट मी कंसिडर दिस इज अ एग्जांपल of spherical mirror. Which type of spherical mirror? In the case of the spherical mirror, we know that two types of the spherical mirror. First one is the concave spherical mirror and second one is the convex spherical mirror. You know that very well. Convex, just like upper surface behave like a reflecting surface. These phenomena are known as convex mirror. But in the case of the concave mirror, the inner face behave like a reflecting surface. This type of mirror are known as concave mirror. Apart of concave and convex mirror, we know that about another mirror, that means a plane mirror. Plane mirror, one side is reflecting and another side is colored. This type of mirror are known as the plane mirror. Now we taking the law of reflection for spherical mirror. First law, student, what is this? This is a principal axis line. That means these points are known as pole, this point known as focal. The twice of this point will be equal of center of curvature. I hope you getting the diagram, the relation between the C, F and P. Now इसी डायग्राम को हम, ठीक है स्टूडेंट, जल्दी 2-4 बार बना लेते हैं ताकि हमको बाद में कुछ असुविधा नहीं हो. पोल, that is focus, and this is center of curvature. Again we can draw first
this is pole, this is focus, the twice of focus known as center of curvature. One more time, this is pole, this is focus, and this is center of curvature. Student, according to the first law of reflection through spherical mirror, ये जो लॉ है ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए मैं प्रूव करूंगा. नाउ वी टेकिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर इन द केस ऑफ द concave mirror. When any beam of light, what is this? Let me consider the name of this part will be equal of PQ. PQ, that means a incident ray. PQ, that means a incident ray. If any beam of light arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through focus. याद रहेगा स्टूडेंट. फर्स्ट पॉइंट, if any beam of light arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through focus. This is a first law of a रिफ्लेक्शन. सेकेंड वन, अगर जो मैंने आपको बोला है कि सर आप इस पाथ से आ रहे हो और इससे जाओगे, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपके फ्रेंड के घर आ रहे हो, तो आपने इस पाथ से इस पाथ पे जा रहे हो, तो रिटर्न जब जाओगे तो बिल्कुल सिमिलर जाओगे. मतलब कहीं ना कहीं सेकेंड लो, इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव थ्रू फोकस. फर्स्ट क्या था, if any beam of light arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through focus. parallel आएगी तो focus से जाएगी. but if any beam of light arrive through the parallel, then after the reflection passing through focus. I hope you getting the difference between the first and second point. parallel आएगी तो focus से जाएगी, और फोकस से आएगी बीम तो पैरेलल जाएगी. इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस. इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव थ्रू फोकस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस. देयर इज द 2 points. नाउ थर्ड पॉइंट, if any beam of light arrive through center of curvature, then after the reflection passing in same path with opposite direction. with same path, देखिए वेन जब ये आ रही है तो मैं इसको इंसिडेंट बोलूंगा, और जब रिटर्न हो रही है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड. दोनों का पाथ सेम है बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. लॉ नंबर 3, इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग with the same path with opposite direction, these phenomena are known as third law of reflection. Now fourth law. पहला आपको समझ आया, दूसरा भी समझ आया, तीसरा भी समझ आ गया. चौथे को देखते हैं. इफ, अगर जो मैं चौथे की बात करूंगा, इफ एनी बीम ऑफ लाइट which arrive on pole of mirror, then after the reflection passing with the same angle. Here the angle of incidence will be equal of angle of reflection. This is a property, law of reflection. I hope you getting the फोर्थ पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर जो आपको ये समझ नहीं आएगा स्टूडेंट, तो आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज नहीं सीख सकते हैं. स्टूडेंट, बोथ आर द डायग्राम रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, बट अगर जो आपको कॉन्वेक्स समझना है तो हम इन डायग्राम को कॉन्वेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, लेट वी कंसिडर व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. इनसाइड फोकस, इनसाइड सेंटर ऑफ कर्वेचर. कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ किधर होगा स्टूडेंट, अंदर की तरफ. ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये किधर लिया हमने, आउटर साइड, तो इधर किधर होगा, अंदर की साइड. इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन. ये फर्स्ट लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, सेम डायग्राम आप कंपेयर भी करेंगे. इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव
parallel to principal axis line, then after the reflection passing in the same medium. अब आप बोलेंगे ठीक है, अगर जो ये अंदर चले जाएगा तो सर ये रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन। पर आपने तो बोला सर ये फोकस से जाना चाहिए, तो इसका जो वर्चुअल दैट मीन्स इमेजिन पार्ट, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव parallel to principal axis line, then after the passing through the focus, these are known as the first law of reflection. Now we taking the another diagram to define this term, ठीक है। inside we take the focus, the twice of focus are known as the center of curvature, and this is a pole. If any beam, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, इफ एनी बीम, जैसा अभी हाल हमने ये बताया, पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी? फोकस से। तो सेकंड के लिए मैं क्या बोलूंगा, अगर जो वो, ठीक है, बोलिए जल्दी से, फोकस से आ रही है, कहां से आएगी स्टूडेंट? फोकस से। देखिए ये जो है ये फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, 110% करेक्ट। तो ये कैसी जानी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ठीक है। इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव थ्रू द फोकस, ये फोकस पा रही है, आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल। अगर जो आप वर्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? फोकस पे, यहाँ पर पैरेलल देन फोकस, यहाँ पर फोकस देन पैरेलल। ये जो दोनों डायग्राम है, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस बोथ डायग्राम रिप्रेजेंट द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, हियर डिफाइंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। नाउ थर्ड डायग्राम which defined the third law of reflection for the convex. In the case of the convex, inside focus and inside center of curvature. If any beam of light, अगर जो आपको समझना है थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं। If any beam of light arrive through center of curvature, ध्यान से देखिए इसको, वर्चुअल अगर जो हम बनाएंगे तो कहां पर मिल रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग द सेम डायरेक्शन, दिस फिनोमेना रिप्रेजेंट द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अंडर द convex mirror. Student, I hope you getting the third law related to concave and convex both. Now final fourth law under the convex mirror. In the case of the convex mirror, if any beam of light arrive on pole, then after the reflection passing in the same medium with the same angle, these phenomena are known as fourth law of reflection. Student, this is the first diagram, ठीक है, for the concave and convex both. This is the second diagram for concave and convex both. This is the third diagram to define the concave and convex both, and this is the fourth diagram. What is the fourth fundamental theory? If any beam of light arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the focus, parallel आएगी तो focus से जाएगी. Second, if any beam of light arrive through focus, then after the reflection passing through the parallel to principal axis line. पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी. थर्ड पॉइंट, इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग द सेम पाथ विद द ऑपोजिट डायरेक्शन. फोर्थ वन, इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव थ्रू पोल, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग इन द सेम मीडियम विद द सेम एंगल. Student, now we take the introduction of the next topic, image formation. What is the mean of the image formation? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको डीप में समझाता हूँ. मान लीजिए ये मेरी आईज है, लेट वी कंसिडर दिस इज अ, ठीक है, माय आईज. ये जो इनिशियल स्टेट होता है, ये मेरे पास एक लेंस होता है. विच टाइप ऑफ लेंस? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस. ये मेरा जो है ह्यूमन आई लेंस है. दिस इज अ ह्यूमन आई लेंस. सर ये कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, मैं उसमें डीप में चर्चा करूंगा, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको देख रहा हूं तो मेरा फोकस 15 मीटर पे होगा. सडनली मैं यहाँ देखूंगा तो 10 मीटर, यहाँ देखूंगा तो 5, यहाँ 2. मतलब फोकल लेंथ क्या है, वेरिएबल है. बट हम जब किसी मैनुअल लेंस को स्टडी करते हैं, इन द केस ऑफ द मैनुअल लेंस, the focal length of lens is constant, but the focal length of the human eye is a variable.
सर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक स्टोन रखा हुआ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज मेरे रेटिना पे बनेगी। बिल्कुल करेक्ट बात बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज मेरे रेटिना पे बनेगी, दैट मीन्स ह्यूमन आई की रेटिना पे बनेगी, और उसी को हम इमेज बोलेंगे इन द रियल लाइफ। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, मान लीजिए लेट वी कंसिडर दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इससे यहाँ पर, ठीक है, ये भी देखिए, आप ये सोचेंगे सर इमेज कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल आप, ठीक है, आपकी इमेज मेरी आंखों में कैसे बनेगी? नंबर ऑफ लाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ यू, आप पर बहुत सारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर द इंसिडेंट नंबर ऑफ लाइट्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो जो लाइट आपकी सरफेस से, आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से, आपके हेयर से, हर एक पॉइंट से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, उनमें से जितनी भी आईज मेरी आंखों के पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आने के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये किसी एक ऑब्जेक्ट से टकरा के पैरेलल आ रही है, देन आफ्टर द इंसिडेंट ये मेरे कहां पर, रेटिना पे जाके इमेज क्रिएट करेगी। नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस क्रिएट द इमेज ऑन रेटिना, दिस इज अ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनी ऑब्जेक्ट एबोव द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो बीम है, ठीक है, हमारा रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन आफ्टर द पासिंग थ्रू द फोकस and this is the center of curvature and any another beam passing through the center of curvature, then we getting the intersecting point between the reflected। देखिए यहाँ पर मुझे intersecting मिला, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा। ये अगर जो एक ऑब्जेक्ट है तो ये मुझे मिलेगा इमेज ए डैश बी डैश। मतलब सर आप हमको बिल्कुल गलत साइंस पढ़ा रहे हो। अकॉर्डिंग टू द फिगर, अगर जो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी? ऐसी। मतलब आप सभी स्टूडेंट उल्टे बैठे हो, तब जाके मुझे आप कैसे दिख रहे हो? सीधे। दैट इज पॉसिबल और नॉट? ये जो न्यूटन का लॉ है यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गया, ये बुक में आपको ऐसा ही मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द मी, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। तो ये जो मैंने चीजें आपको बना के दिखाई है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या इमेज फॉर्मेशन। इन द केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर वी हैव, देखिए कल हम इसको स्टडी करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ केसेस, हाउ मेनी केसेस आर देयर, फर्स्ट वन व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला केस आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पहला क्या केस बनेगा सर? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फिर धीरे से ये कहां पर आ जाएगा? इंफिनिटी से आ जाएगा बिटवीन द इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, केस नंबर 2। केस नंबर 3 ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे आप? कल मुझे ये सारे केस स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन पे रिलेटेड टू व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी, व्हेन object between infinity and center of curvature, when object at center of curvature, when object between the center of curvature and focus, when object at a focus, when object between the फोकस एंड पोल। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर अब आप बताएंगे ऑब्जेक्ट पोल पे। अरे भैया, मैं किसी के लेंस के ऊपर ही चढ़ जाऊंगा तो लेंस मतलब मिरर टूट जाएगा कि नहीं? यस और नो? तो मैं मिरर पे थोड़ी ना चढ़ूंगा। ओके, तो ये मेरी कुछ नंबर ऑफ केसेस आएंगे जिनका मुझे स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस पे वी हैव टू गेट द पोजीशंस। मुझे 3 चीजें दिखानी है इसमें। फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड वन, ठीक है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो रियल होगा या तो वो वर्चुअल होगा। और थर्ड, ठीक है, साइज, दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर
solution or concept related to today's topic. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santibani Higher Secondary School Rajota. Student, please like, subscribe and also study from our channel.